retail. The content for discussion today is called retail management. So here we are going to have a brief introduction about the retail management subject. So we are going to study with unit number 1. So I'll be just reading out the entire syllabus so that you will have a summary picture in your mind that in whole subject what you're going to learn, right? I guess one more person is sitting there. I saw somebody like that. He's HR. Okay, fine. So today we are starting up with this subject, retail management. So retail word का मतलब क्या है? Anything you know about it? Can anyone tell me? Who are called retailer? Retailer are the person who is the person who is directly selling the product to the consumer, right? Who is a person who is purchasing the product from the wholesaler or from any agent, or we can say from any type of marketing manufacturing department. Ultimately, what is he doing? What is he doing? He is going to sell the product directly to the ultimate consumer. So this particular person, we call it as what? Retailer. So retail is something relevant to retail, right? So retail management, how you're going to manage, what all the system to be followed by the retailer. अगर हमारे लिए हम सोचे कि जो दुकान रखा है छोटा मोटा, उसको हम रिटेलर बोल देते हैं. जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेलिंग टू द कंज्यूमर, उसको भी हम रिटेलर बोल देते हैं. बट रिटेलर का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. उसको भी अगर इन डेप्थ अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा स्कोप इतना बढ़ जाता है कि हम खुद का ही एक शॉप ओपन करके हमें पता चलेगा कि हमें कैसा मैनेज करना है रिटेल शॉप. देखो हर चीज का देयर आर सर्टेन सिस्टम टू बी फॉलो. तो बेसिकली व्हाट हैपन, आवर पेरेंट्स और आवर grandparents and all, they have not studied, they have not a learned person, they doesn't know what exactly the market says about, but with their own experience they gathered so much of information and they have implemented those in the business, and now many are successful also in the business, right? But what happened nowadays these people are not allowed to go out of the class, right? These people are not allowed to go out of the class, not out of the class, but out of the society, because parents are so concerned about their children. So to get a live and direct experience from the society, it is not at all possible. So what happened basically, so these students nowadays, the younger generation, they need to learn more about whatever they are going to implement in the society, they are going to learn more about in the education field. So that's the reason all the systems and everything we are going to follow it, we are going to study in the subject. So today our subject calls about retail management. So it is a brief introduction about the subject which you are going to learn. First of all, in unit 1, we are going to learn about retail management. तो क्या जरूरत है retail management पढ़ने का, उसका importance क्या है? तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो रिटेल मैनेजमेंट है उनमें कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है रिटेल मैनेजमेंट को बढ़ाना, अपग्रेड करना, या रिटेल मैनेज के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना. व्हाट आर द फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, वन पर्टिकुलर थिंग जिसको बहुत सारा चीज क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसका प्रोग्रेस के लिए भी इफेक्ट करेगा या डिप्रोमोट के लिए भी उसको इफेक्ट करेगा. तो ये कौन सा फैक्टर है इन्फ्लुएंस करता है रिटेल मैनेजर को, इवन इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोथ द थिंग्स. देन वी हैव अ स्कोप ऑफ रिटेल मैनेजमेंट. Scope of retail management. So what do you mean by scope of? Scope is nothing. If you are learning retail management today, so what are the scope is there? In future, the person who are dealing with the retail management, 1 minute, turn the bench and shift. Okay, we are dealing with the retail management when they are studying up with the retail management and they are well versed with the retail management subject, what they can do in future. Scope हमेशा होता है what you're going to do with this particular concept
what you're going to do it in the future. So that is what we call it as what? Scope. So after studying this retail management, after understanding what is retail management, we can understand, we can proceed with our work, and what are the benefit and scope, what we are going to do with this retail management subject, that and all we are going to learn in scope of retail management. And retail management का format क्या है? What are the format concept of retailing? Retailing क्या होता है, उसको कैसा करना है? देखो हर चीज अगर हम लोग रफली देखा जाएगा, हमें लगता है कि बहुत छोटा सा चीज है, बट व्हेन वी गो इन डेप्थ वी आर लर्निंग मेनी इन डिटेल थिंग्स. अभी आपने FYBMS खत्म किया है, SYBMS खत्म किया है, ये दोनों पार्ट में आपने बहुत सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ा रहेगा. मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स. अल्टीमेटली देखा जाएगा हर चीज एक ही बात बोलता है. तो इसके लिए इतना नाम क्यों है? बिकॉज इन डिटेल व्हेन यू लर्न, एक क्वेश्चन पे अगर आपको स्ट्रेस दिया गया है फीचर्स के ऊपर, तो दूसरा क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा. नाउ अल्टीमेटली वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर वन एंड द सेम, वी ऑल आर अवेयर. इट इज सम स्लाइड चेंजेस. अभी हमें एक एग्जांपल बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स का. सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं. सॉल्ट का फीचर क्या है? वो व्हाइट कलर है. बट सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज सॉल्टीनेस है क्या, वो हम लोग उसको सीखते हैं. बट अगर मैं फीचर्स का बात करेंगे तो उसका अपीयरेंस के बारे में बताएंगे, उसका क्वालिटी के बारे में, उसके इसके बारे में, अपीयरेंस के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, उसका गुण क्या है. So accordingly what happened for everything when we go in detail study, we have slight differences. तो इसीलिए सब्जेक्ट अपना बहुत वास्ट हो जाता है. इन डिटेली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिटेलिंग, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इन इंडिया. इंडिया में कौन से फैक्टर्स है? अभी ये फैक्टर, ये वर्ड का मतलब मैं अगर आपको समझाने वाली हूँ. सी माय बेसिक concept of explaining the syllabus is what a factor, feature, significance. इसके इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि हमेशा बच्चे यही चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि देखो पॉइंट्स तो वो लोग पढ़ ही लेते हैं. यू पीपल आर वेरी गुड इन मगअपिंग अप, यू पीपल आर वेरी गुड इन एक्सपैंडिंग द पॉइंट्स, बट कौन सा पॉइंट किधर लिखना है, दैट हैज बिकम द बिगेस्ट टास्क फॉर यू पीपल. सो ये फैक्टर क्या है, ये इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस की मतलब क्या है. तो ये जो छोटा छोटा बातें हैं वो हम लोग हर चीज सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ही मिलेगा आपको. कुछ सब्जेक्ट में अपना, कुछ चैप्टर पे अपना फैक्टर दिखेगा, तो कुछ चैप्टर पे अपना इंपॉर्टेंस दिखेगा. अलग अलग सिखाने से you will not understand that finally. So today you make a concept very clear. See, I am going to learn about the in the syllabus today, what and all I am going to study in this particular subject first. Second important thing, you are going to learn about scope, significance, features. I know that you are in TYBMS and you don't require such a type of explanation. You don't require this type of basic and core explanation. Maybe you are well versed with the subject, but what happened, no dear? For maybe your 50-60 students approximately, and then out of 40 students are very well versed about what are the natures about it. But I am concerned about for that 20% student who are still doesn't know the meaning of the question. बहुत सारे टाइम अपना प्रॉब्लम, बिकॉज लास्ट 2 years you are writing online exam, it is well versed, and you are having an objective pattern question, it's okay, but then this is not the case. Now in semester 6 definitely it has come some small information we have received that semester 6 maybe there is an offline exam. अगर ऑफलाइन पे आ गया तो आप लोगों को थियरी पैटर्न पे ही एग्जाम लिखना है. अब इधर प्रॉब्लम क्या है, लास्ट 2.5 year मे बी आई कैन से फर्स्ट ईयर का पहला पार्ट आप ऑफलाइन में लिखे रहेंगे, सेकेंड पार्ट से तुम्हारा चालू हो गया MCQs पैटर्न, if I am right. So then what happened कि last 3 exams you have 3 to 4 exam you have done with MCQ pattern. आप लोग तो बहुत मजे से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही है, कैसा भी क्लिक करो, इंकी पिंकी फॉन्की करो, कुछ भी करो, you will get the options. But basically what happened when it is time to come to write क्वेश्चन पेपर, आप अगर हाथ में ले गए, उसमें फीचर्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो
हियर आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता है, रिटेल मैनेजमेंट का मतलब पता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग का मतलब पता है, बट ये सिग्निफिकेंट स्कोप इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है. It happens many a time, even a learned person it happen that. तो आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर लिखना, that doesn't, it won't make sense. अभी आप सोच रहे मुंबई यूनिवर्सिटी है कुछ भी लिखो मार्क्स देते थे, वैसे नहीं होता है. You need to understand it very clearly कि अगर आपको नेचर के बारे में पूछा है और आप इंपॉर्टेंस लिख के आते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन तो 0 मार्क्स मिलेगा. भले आपने स्पोर्ट्स मार्केटिंग के पूछा है, रिटेल मैनेजमेंट का पूछा है तो वही लिख रहे हो आप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. बट माय क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट स्कोप एंड यू रिटन समथिंग रिलेवेंट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यू हैव 0 मार्क्स. My question is talking about factor influencing, your writing the answer of factor responsible, again that is wrong. So question समझ के answer लिखना is very important part, and that is what our first introduction lecture. So I have taken all the content in one page, so understand कि हम पढ़ने क्या वाला है और कुछ कुछ वर्ड्स का मैं मतलब बता के जाएगी. You keep it in your mind. See, ये नोट्स बनाने वाला मतलब नहीं है, आपको समझ के लेने वाला मतलब है. So you keep it in mind accordingly. Next we have a multi-channel retail. First of all, we have factor responsible for the growth of organized retail in India. Retail market India में क्या है? अभी मुझे बता दो, मॉल्स है. मॉल को मैं कौन से पार्ट में कंसीडर करूं? रिटेल में कंसीडर करूं या होलसेल में कंसीडर करूं? Can anyone explain me? Retail. Why we consider that as a retail? Because these products are directly sold to the customer. Directly sold. If I talk about malls, so here what happened? In the mall, the full mall is not belongs to one particular shop. It has varieties of shop. If I go some to purchase some shoes, I get Reebok over there. I get Bata. I get what else? Nike. So whatever the various brands is available in the market, I can get the entire market segment in one particular place, right? So ये सब चीज कैसा बढ़ गया अचानक, because when I was younger, when I was in 9th and 10th, I hardly seen some malls. But then in the time meal of 20 years, the gap of 20 years or maybe 15, 17 years, lots of improvement in all the cases, right? So ये growth हुआ है. क्या हुआ है? Growth हुआ है. हर system, हर pattern में there is various growths are happened. How it is possible to do that? So some factors are responsible. First of all, मैं बोल सकती हूँ कि people are more learned than before. Yes. Why? Because previous के लोग अगर आप देखेंगे, आज भी देखेंगे कुछ ऐसे सेगमेंट से कि वो लोग छोटे से शॉप में जाके 2-3 हजार का शॉपिंग कर लेंगे. वही बंदे, वही लोग बड़े मॉल पे जाने के लिए वो लोग को डर लगता है, फियर फैक्टर. Why? Because they feel कि पता नहीं उधर के स्टेटस क्या है, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. बट आज आपको एक फैक्ट बता दूं, मॉल में जो जाते हैं वो लोग सेल में उठा के लाते हैं, है ना? If suppose this person who are going to the normal retailing shop around the locality, locations में जो है उधर हम लोग लिखे रिटेल शॉप में जाते हैं, उधर हमको 1 रुपया भी कम नहीं करेगा. वो बोलेगा मैडम फिक्स प्राइस आपको दिख नहीं रहा है क्या? Like that he will mention. But when I go to the mall, I have buy one get one free, buy this and get 40% off, buy this and buy the second product of 50% off. You will get, so like that lots of marketing strategy they have. So if I will see, if I will evaluate both the person going in a normal retail shop and the person going in normal retail shop and the person going into the mall. मॉल पे जो जाता है वो 10,000 खर्चा करके 20 कपड़ा लेके आएगा. रिटेल शॉप में जो जाने वाला है वही 10,000 खर्चा करके 5 कपड़ा लेके आएगा. Why it happened? Because who is now benefited? अभी बेनिफिट कौन है? I can say to the person going to the retail shop, no, the person is going to the mall. And who is spending less? अभी इसमें कौन कम spend कर रहा है? Definitely the person going to the
Mall is spending less. Okay, why this has happened? Because they have certain factors responsible. अब ये फैक्टर हर एक के अंदर आ गया. अभी आपके आपके पेरेंट्स लोग या ग्रैंड पेरेंट्स विल नॉट कम दैट कॉन्फिडेंटली, बट आप लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए मॉल पे ऐसा मजा से घूमते हैं. You window shopping, you know what do you mean by window shopping? Can anyone explain me what do you mean by window shopping? No, no. Anyone else? You people always does this window shopping. Now tell me what exactly the window shopping is. No. Anyone aware about? So I explain. What do you mean by window shopping? We go to mall, but we don't purchase anything. What we do, sometimes we don't purchase. What we do, I observe every शॉप के अंदर जाएंगे, सब प्रोडक्ट देखेंगे, कुछ पहन के भी देखेंगे, नहीं पसंद आ गया, आ गए. सो दैट शॉपिंग इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग. अब ये करने के लिए एक अलग से कॉन्फिडेंट लेवल चाहिए लोगों को, है ना. इफ आई से माय ग्रैंडपेरेंट्स और पेरेंट्स टू गो एंड विजिट इन द शॉप जस्ट लाइक दैट एंड डोंट बाय एनीथिंग, कम बैक लाइक दैट, दे विल नॉट डू सच थिंग्स. दे विल से अगर एक शॉप में गया, वो बेचारा इतना अपने को दिखाता है तो हमें परचेस करना ही पड़ेगा. Why I am concerned about other when I doesn't like the product, I will not buy the product. So those shopping is again called as window shopping. So leaving apart, because I just want to explain the concept of window shopping, so I have explained. So I'll come back to my topic now. So ऐसे बहुत सारे factors है. सबसे बड़ा factor तो we are learner. We know how to deal with the public. We know where to go and do the shopping and many more things. और इसमें क्या हो जाता है, रिटेल का जो दुनिया है, रिटेल मैनेजमेंट है, क्या उसको मैनेज करना, बट रिटेल का एक अलग से एक दुनिया है. तो वो दुनिया में ग्रोथ कैसा हो गया इतना अचानक, right? So relevant to that, we are going to learn over here multi-channel retailing. E-tailing meaning, sorry, इसका मतलब ये रॉन्ग कुछ स्पेलिंग लिखा है. हाँ वैसे ओके. ई रिटेलिंग मीनिंग, मतलब ई रिटेलिंग आजकल वैसा भी होता है ना. आई विल टेल यू वन थिंग. आजकल अगर आप फेसबुक वगैरह पे जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपना घर पे होलसेलर से प्रोडक्ट लेके आते हैं और वन बाय वन उसको पहन के दिखा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा उनको बता देते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसका फीचर से है, तो आप ऐसा ले लो. तो इसमें क्या हो जाता है, आई एम सीइंग द प्रोडक्ट. मैं रिटेल में जाके होलसेल में तो नहीं ले रही हूँ. मैं आई एम गोइंग टू परचेज ओनली वन प्रोडक्ट, देन इट कम अल्टीमेटली कम अंडर रिटेलिंग, राइट? सो व्हाट हैपेंड, आई एम सीइंग द प्रोडक्ट इन द यूट्यूब. I am attracted towards it, so I will just see the option how I can pay and I can buy the product. So I'll be paying for the product and buying this product for my usage. So it is all called e-retailing. मतलब इधर भी वो लोग होलसेल में नहीं काम कर रहे, इधर भी वो लोग रिटेल ही सेल कर रहे, बट कैसा कि ऑनलाइन they were selling it out, right? So such things we are called again as what, e-retailing. और उसका advantages क्या है, limitations and all here. Emerging trend in retailing. ट्रेंड, एमर्जिंग ट्रेंड, ये वर्ड को ही तुम समझना चाहिए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा. वन वी आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ अ क्वेश्चन. क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मालूम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन है तो हम सॉल्यूशन किधर से भी लेके आएंगे. एज ए मुंबई यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, वी आर वेल वर्स्ड इन राइटिंग द पेपर इफ वी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. इज इट करेक्ट? Yes. That is what the specialty in Mumbai University, but basically that won't work much. But anyhow, for passing category, you can do so. So emerging trends. Can anyone explain me what do you mean by emerging trend? Okay, maybe a part, but not exactly. Anyone? See what happened here. क्या रीजन है रिटेलिंग मार्केट इतना बढ़ गया? पहला कैसा था और आज क्या हो गया? तो पहले का और आज का कंपैरिजन एट अ स्ट्रेच तो इतना बड़ा नहीं है रिटेल मैनेजमेंट.
स्लो बाय स्लो, वन स्टेप बाय सेकेंड, सेकेंड स्टेप बाय थर्ड, तो एक एक स्टेप करके बढ़ा है। अभी पहला कैसा था, आज क्या है, वो हर एक स्टेप को जब हम लोग पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज इमर्जिंग ट्रेंड्स। सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आई कैन टेल यू द मोबाइल में आज के डेट में वी हैव एवरीथिंग। तो मैं अभी इसका इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल बता देती हूँ। सबसे पहला मोबाइल हमको जब मिला था, उसमें से सिर्फ हम लोग कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और कॉल रिसीव कर सकते हैं, राइट। इट इज इन द ईयर ऑफ 1990। सबसे स्टार्टिंग में मैसेज नहीं था, पहला पेजर था, पेजर में मैसेज होता था, फिर उसके बाद मोबाइल में मैसेज था। बिकॉज आई नो द इमीडिएटली जिस दिन मोबाइल मतलब कौन से ट्रेंड में मोबाइल आया था, वी गॉट मोबाइल एट होम, सो वी नो हाउ व्हाट इट इज लाइक। So immediately when the first stage has come, सबसे पहला text ही आया था, we call that as a pager. Then we have got mobile where we can call and we can receive and we have messages. Then after some time, I can have access of radio. After some time, I can have access of some sort of internet connection. बहुत कम minute internet connection. Then I got access of MP3. Then I got access of high graded mobile with camera. Then I got access of front camera. Then पीछे 3 कैमरा, 4 कैमरा, 5 कैमरा भी कुछ भी आता है। Okay. फिर upgradation in the battery level, upgradation in the touch screen. पहला कैसा था, मैन्युअली, फिर फ्लिप करके हम लोग देखते थे, फिर we got touch screen. ये इमर्जिंग ट्रेंड होता है, मतलब स्लोली स्लोली स्लोली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी जो मैंने बोला है कि सीक्वेंस जो बताया है आपको, वैसे ही सीक्वेंस में रिटेलिंग का क्या ट्रेंड है। रिटेलिंग पहला कैसा था, फिर क्या इन्वॉल्व हो गया, फिर क्या इन्वॉल्व हो गया, फिर क्या इन्वॉल्व हो गया अल्टीमेटली। तो सबसे पहला मैं एक ही पार्ट ग्लोबलाइजेशन का बता देती हूँ। What do you mean by globalization? You all know, because of this globalization only, we India now is in advanced state. I example. Globalization ने तो मैम अपोजिट वे में भी रिटेलिंग को अफेक्ट किया है। लाइक जैसे नियर बाय के रिटेल शॉप्स हैं, most of the people stop purchasing from these shops. They are purchasing from Amazon, Flipkart. 50% people nowadays in India, if I'll say, see the literature rate, 50% of population, we are just sitting in a city. It doesn't mean कि सिटी में बैठा है, सिटी का पॉपुलेशन 100% है, नहीं। सिटी का पॉपुलेशन, if I compare with the villages of India, it is hardly some 10%. Another 90% में 50% लर्नड रह गए और 50% आज भी अनपढ़ ही है। और वो गांवों पे आज भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पहुंचता नहीं है। आज भी उनको प्रोडक्ट परचेस करना है, उधर ये क्या बोलते हैं उसको, मेला नहीं, व्हाट आई हैव नॉट आंसर, डेली मार्केट्स जो वीकली होते हैं, वीकली मार्केट। हाँ, हर जगह पे एक डे होता है कि हाँ इधर आज फ्राइडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है, वेडनेसडे मार्केट है, संडे। तो इफ यू सी इन आवर नेटिव प्लेसेस एंड ऑल, कि वो जो फ्राइडे ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे मार्केट है ना, उस मार्केट में वो लोग हर चीज लेके आते हैं। उनको उधर शॉप भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे दे विल गेट एवरीथिंग। और अच्छा, अल्टीमेटली दे कैन बाय द प्रोडक्ट। अभी नाउ आई विल एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम क्या हो गया था। सी अगर टाइम ट्रेंड देखा जाए, अपना इंडिया इज 20 years बैक फ्रॉम यूएसए, इट वाज बिफोर। जिस टाइम से ये लैपटॉप मोबाइल वगैरह जिस दिन आया है, जिस दिन ये सोशल मीडिया का कंसेप्ट लोगों का बीच में पब्लिश हुआ है, उस दिन से क्या हुआ है कि आज अमेरिका में कुछ प्रोडक्ट को इनोवेशन करता है, मतलब फाइंड आउट होता है, अगला 10 दिन में वो पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो 20 years का गैप था प्रीवियसली, अभी बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, आज कुछ भी उधर मिलता है तो हमारे पास इधर आ जाता है। आज का डेट क्या है,
26 or something has happened in 26 level. What can anyone say? Or anyone? बहुत पहला शायद से ट्विन टावर का भी यही दिन में कुछ हुआ था. ट्विन टावर अटैक हुआ एरोप्लेन से. You are very angry during that time. Maybe now that then that news will be not relevant to you. But you understood what is my globalization? Globalization के वजह से हमारा जो ग्रोथ है एकदम स्पीड पकड़ा और सोशल मीडिया के वजह से और ज्यादा स्पीड, क्योंकि आज के डेट में किधर साइक्लोन आता है तो हमें तुरंत विथ पिक्चर विथ वीडियो विथ द अफेक्टेड पीपल ऑल बी एबल टू सी. आज के डेट में who is playing music? आज के डेट में अगर किधर किसी इजराइल में कुछ अटैक हो रहा है तो हमको तुरंत पता चलता है, like that because of the impact of globalization. So let me come back to that point, bringing into the retailing. तो retailing में आज वो सब चीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंप्रूव हुआ. और एक बात बताती हूँ, ब्रांडेड ये नाम कब से ज्यादा इंप्लीमेंट होने लगा. सी आज के छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं ना, दे वांटेड हर प्रोडक्ट इन अ ब्रांडेड प्लेस. प्रीवियसली ऐसा नहीं, दुकान में जाते हैं जो अवेलेबल है वो लेके आ जाते थे. लोगों को ये ब्रांडेड नाम भी नहीं पता. आज तुम अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलो डैडी हमको अच्छा ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, वो बोलेगा क्या? इट हैपेंस. Why? Because during their time उनको दो कपड़ा मिलना ही बहुत मुश्किल रहता था. बट आज के डेट में ऐसा नहीं है कि people are buying. पहला occasions आना पड़ता था कपड़ा लेने के लिए. आज के डेट में कपड़ा लेने के बाद हम खुद occasions बनाते नया कपड़ा खरीदने के लिए. It happens. So it all retailing अभी कैसा उसमें increase हो गया because of this branded concept. Branded concept कैसा आया? अभी Allen Solly branded है. So we say that you don't know. Okay, for bags के लिए we can say Bagit, or we can say shoe के लिए we have some brand. For watch we have some brand. So everything branded we are using. अब ये brand बहुत सारा it doesn't belongs to India manufacturing. वो कंपनी किधर का नहीं है? इंडिया का नहीं है किधर का? अब्रॉड का. एंड इट हैज केम हियर. उधर तो वो प्रोडक्ट तो बहुत चीप में मिलता रहेगा, बट उधर का प्रोडक्ट जब इधर आता है we call that as what? Branded. How that is possible? Because of this globalization. और बहुत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल. तो ये सब इन डिटेल. बट एमर्जिंग ट्रेंड कैसा स्लोली अपना मार्केटिंग अपना रिटेलिंग बढ़ गया है. Then we have unit 2, retail consumer and retail strategy. अभी रिटेल कंज्यूमर और शॉपर. अभी कंज्यूमर कौन है? वो अल्टीमेट यूजर. शॉपर कौन है? वी आर ओनली द हम लोग ही शॉपिंग कर रहे हैं ना. तो इसमें हम लोग क्या है? रिटेल कंज्यूमर एंड शॉपर. रिटेल कंज्यूमर मतलब हम कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं ये ऐसा नहीं करे कि मैं जाके 12 उठा के लेके आई. I will not go and buy it in a wholesale. So I have become a retail consumer. If I will be buying those products in wholesale, then I have become the wholesale consumer. For example, we can say कुछ ऐसे families होते हैं. I know about some certain families that basically in Muslims and all we have a huge family sector. उनके घर पे पूरा क्राउड रहते हैं और उसमें से एक एल्डर पर्सन रहेगा, वो सीधा होलसेल मार्केट पहुंचता है और पूरा फैमिली के लिए जो भी चाहिए at a wholesale rate they will purchase it and come. So what happened over here? This particular person is not purchasing for himself. अगर वो खुद के लिए सिर्फ परचेस कर रहे थे, it will go under retail. And he is purchasing the whole product. अगर देखो मैंने बहुत बार ऐसा डीमार्ट में देखा है कि उन लोग जब डीमार्ट में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, it will be 3 to 4 ट्रॉली. I used to guess कि इतना सारा
कैसा जरूरत पड़ गया एक के घर पे, because basically what happened, it they don't purchase for one single family. I understand, because previous also in college where I used to teach, I have lots of students into category of that, and I know that they will say, madam वो मेरा cousin brother है, ये मेरा cousin sister है, तो एक ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उनका ही रिलेटिव 7-10 बच्चे रहेंगे. So what we feel, okay, the full crowd, and say what they always tell that मैडम हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इतना यूनिटी, इतना ना, it is right. So when they, who is the person, unmute, sorry, mute the, so like that. So retail shopper मतलब कौन, जो जाएगा सिर्फ खुद के लिए ही शॉपिंग करके आएगा. एंड दैट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मतलब रिटेल शॉपर को कौन सा फैक्टर सपोर्ट करता है कि तुम जाके परचेस करो. दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. कंज्यूमर और शॉपर में क्या डिफरेंस है? शॉपर नॉट डिफरेंट, सो दैट्स द रीजन देयर इज अ स्लैश. कंज्यूमर और रहेगा तो डिफरेंस, बोथ आर सेम, दैट्स द रीजन और स्लैश डाला है. अगर बीच में और रहेगा तो अलग अलग है, एंड भी रहेगा तो अलग अलग है. स्लैश है इसका मतलब ए भी हो सकता है. अभी क्वेश्चन में आएगा आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल शॉपर्स. कभी शॉपर्स करके आप वर्ड रीड करते हैं, वर्ड यू विल सी शॉप में लगता है, तो रिटेल शॉप के बारे में तुम लोग विल स्टार्ट रीडिंग. शॉपर को हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं ना. मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि शॉपर मींस शॉपर वो होता है जो प्रोडक्ट अपने लिए नहीं खरीद के दूसरों के लिए मींस खुद के शॉपर, if I word, खुद के कंज्यूमिंग के लिए खरीद. if I read only word shopper, तो शॉप जो रखता है he is a shopper. Who is having the shop? Retail shop. शॉपकीपर. हाँ. तो शॉपर. शॉपर मैंने ऐसा पढ़ा था कि शॉपर मींस जो लाइक से मैं मेरे सिस्टर के लिए परचेस करके जा रहा हूँ, सिस्टर के कपड़े परचेस कर रहा हूँ, तो वो मैं खुद तो नहीं यूज करने वाला. अरे दैट इज व्हाट यू आर परचेसिंग. यू आर द कंज्यूमर. तुम खुद के लिए परचेस करो या किसी और के लिए परचेस करो, यू आर गोइंग एंड परचेसिंग, तो यू आर कंज्यूमर और यू आर डूइंग परचेसिंग एवरी टाइम. इट डजंट हैपन कि हम हमारे लिए जाके परचेस करते हैं, हम हमारे रिलेटिव के लिए भी जाके परचेस करते हैं. तो दैट इज अगेन कॉल्ड कंज्यूमर. भी एक ही है अल्टीमेटली, वो भी अकेली यूज करने वाली ना, 2 जन का नहीं तो यूज करने वाले हैं. तो शॉपर भी वही होता है. You are only purchasing, no? So now you are purchasing for yourself, you are consumer. You are purchasing for your sister, then you are a shopper. So that is what I am telling. So individual जाके purchase कर रहे हैं ना. We are not purchasing in lot and in lump sum, bulk. Bulk में नहीं purchase कर रहे हम. Fine. पर CRM का मतलब क्या है? Yes. Retail का strategy we are going to learn. Store location selection, definitely retail shop रखना है. What happened? मैटर करता है. Yeah. HRM in retail, human resources. The person should be enough capable to conduct this business in retail. Management करने के लिए उसके पास तो capacity होना चाहिए कि नहीं? In every field there should be HRM. HRM कौन? Human resources management. अगर इंसान ही नहीं है तो business और product और जो भी हो कैसा होएगा possible? Not possible. Organization structures in retail. अभी organization का structure कैसा होना चाहिए? I guess time is end up finished or what? Organization का structure कैसा होना चाहिए? Everything we are going to